students, my name is Hiral Lodge from JMP English Medium School. Kids, our lesson number is 3, Housing and Clothing. Our chapter is all about housing and clothing. Today's section, I am going to explain you about clothes and fibers and about natural fibers. And I want to give you some information regarding fibers from plants and fibers from animals. But before I start today's section, I just want to explain you about last 2 sessions. In last 2 sessions, what we have done? We have done vocabulary words, meanings, and all about a clean house. Right? So, fatafat se let's recall it. Now, number 1, germs. G-E-R-M-S, germs. G-E-R-M-S, germs. Number 2, garbage. G-A-R-B-A-G-E, garbage. G-A-R-B-A-G-E, garbage. Number 3, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. Number 4, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. Number 5, synthetic. S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic. S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic. Number 6, ropes. R-O-P-E-S, ropes. R-O-P-E-S, ropes. Number 7, fabric. F-I-F-A-B-R-I-C, fabric. F-A-B-R-I-C, fabric. Number 8, warm. W-A-R-M, warm. W-A-R-M, warm. Number 9, tidy. T-I-D-Y, tidy. T-I-D-Y, tidy. Number 10, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. Number 11, cozy. C-O-S-Y, cozy. C-O-S-Y, cozy. Number 12, swept. S-W-E-P-T, swept. S-W-E-P-T, swept. Number 30, material. M-A-T-E-R-I-A-L, material. M-A-T-E-R-I-A-L, material. Number 14, thread. T-H-R-E-A-D, thread. T-H-R-E-A-D, thread. Number 15, mats. M-A-T-S, mats. M-A-T-S, mats. Now kids, I'm again pronunciated, so your pronunciation will be improved. Number 1, germs. Number 2, garbage. Number 3, fibers. Number 4, natural. Number 5, synthetic. Number 6, ropes. Number 7, fabric. Number 8, warm. Number 9, tidy. Number 10, mosquitoes. Number 11, cozy. Number 12, swept. Number 13, material. Number 14, thread. And number 15, mats. Now kids, let's move to meanings. Number 1, germ. A very small living thing that causes diseases. Germs मतलब बहुत ही छोटे living thing, a small living thing that causes diseases. जो diseases को cause करता है मतलब diseases को पैदा करता है, right? Now number 2, garbage, waste food, paper, and so on that we throw away. Whatever is waste material like wrappers, anything regarding peel of vegetables and fruits, anything which is waste, that is called garbage. Number 3, natural, as found in natural and not made by human beings. Natural means whatever it is provided from nature, from like animals and plants, that is called natural. And which is not man-made, यानी कि हम human beings ने नहीं बनाया है, that things are called natural. We get it from nature.
Number 4, synthetic. Man-made combining chemical substances rather than being produced by plants or animals. Synthetic means whatever is made by us. मतलब whatever made by human beings, a new material by combining some different materials. That material is called synthetic material. Now number 5, warm. Hot, cozy or warm. Warm मतलब whenever, whatever, when we feel some cold and by wearing sweater and immediately we feel comfortability. After wearing sweater, we got some warmness in our body, from our body, right? That is called warm. मतलब hot, cozy or warming. Clear? Now number 6, silkworm. Silkworm is an insect. We get a material named silk from silkworm. Clear? तो ये थे हमारे meanings. I hope so you understand meanings. Now in session 2, what I explained you? I explained you about a clean house. ये clean house कैसे रखते हैं? A clean house में क्या क्या होता है? Clear? We use various materials to build houses to live in. Our house is made by different materials, right? Not from a single material. We use so many different materials like furniture में wood, फिर POP, different some items होती है, show pieces होते हैं ना. So we need to take care of that things, right, in a proper way, because वो सारी की सारी चीजें costly होती है, हमें उसको maintain करना है to look our house tidy, right? तो उसको हमें clean कैसे करना है? Garbage मतलब कचरा. We need to throw it outside. We need to take care of our house, right? तो उसको कैसे हाउस को क्लीन रखना है वो हम लास्ट सेशन में पढ़ा था, राइट? 5 points. Let's recall it फटाफट से. Number 1, a clean house should have large and airy windows to let the sunlight in. This keeps the rooms dry and free from germs. A good ventilated house must have large and airy windows. कि एक अच्छे वेंटिलेटेड एक अच्छे से घर में बड़ी बड़ी विंडोज होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट आ सके, और सनलाइट अगर घर में आ सकता है तो उससे क्या होगा? जर्म्स किल होंगे, मतलब जर्म्स मर जाएंगे. अगर जर्म्स मर जाएंगे तो हमें कोई भी डिसीजेस या ऐसा कुछ भी होगा नहीं, और हम बहुत ही हेल्दी रहेंगे. एक अच्छे घर में बड़ी विंडोज होगी तो सनलाइट आएगी, और एयर की भी अंदर बाहर की जो होती है वो एक कंटिन्यूएशन में होगी कि एयर फ्रेश एयर अंदर आएगी और वो जो गंदी एयर है वो बाहर चली जाएगी. तो वी नीड अ बिग विंडोज इन आवर हाउस. होप सो आप सबके घर पे होगी ही होगी, बट तो होती ही है आपके घर में, तो उसको क्या करना है? उसको खोल के रखनी, उसको बंद रखनी नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर 2, windows should have wire netting to keep out flies and mosquitoes. If we are opening our windows time to time, then what happens? Flies and mosquitoes also come in, right? कि flies और mosquitoes भी अंदर आ सकती है उसके साथ. Then what happens? क्या होगा उससे? तो उससे हमें diseases हो जाएगी. तो again वो खराब चीज हुई. Then we should हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कि वायर नेटिंग्स को अप्लाई करना पड़ेगा, वायर नेटिंग्स को लगाना पड़ेगा. वायर नेटिंग्स हमने हमारे घर पे लगा दी तो उससे क्या होगा? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज गेट अवे, मतलब कि वो बाहर ही रहेगी और दूर ही रहेगी. वायर नेटिंग्स के जो होल होते हैं इतने छोटे छोटे, वो एयर को अंदर आने दे सकते, बट फ्लाइज और मॉस्किटोज को क्या करेंगे? उसको बाहर ही रखेंगे. तो इन आवर हाउस we should have wire netting to keep flies and mosquitoes away. Clear? Now point number 3, things should be kept in their proper places. This makes a house look tidy. In last session I explained how to keep our things in a proper place. हम जब भी घर पे जाएंगे तो सब कुछ proper place पे ही रखेंगे. If we are not keeping all the things in a proper place, then what happens? Our home looks untidy, बहुत ही गंदा दिखेगा.
दिखेगा ना? We are supposed to keep all the things at their own place. We need to help our mom also. हमें हमारी मम्मा की हेल्प भी करनी चाहिए अपनी अपनी प्लेस पर सब कुछ रखने के लिए। क्लियर? अदरवाइज हमारा घर कैसा दिखेगा? बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा दिखेगा, क्लीन दिखेगा नहीं। Now point number 4. All the rooms in a house should be swept and mopped regularly. What I told you, we have a dust particles in our atmosphere only, right? तो dust particles होते हैं तो what natural हमारे घर पे भी आ सकते हैं। तो हमें हमारे घर को swept और mopping रेगुलर बेस पर करना है। झाड़ू पोछा हमें रेगुलरली करना है। अगर हम झाड़ू पोछा रेगुलरली नहीं करेंगे तो उससे हमारा घर बहुत ही डर्टी डस्ट पार्टिकल से भर जाएगा, कचरा लगेगा। ठीक है? हमारी मम्मा डेफिनेटली रोज ही करती है, आपने कभी नोटिस किया है? नहीं किया तो अब आज आप नोटिस करोगे। मम्मा डेली स्वेप्ट और मोपिंग करती है तो उससे क्या होता है कि हमारा घर क्लीन रहता है, बदबू नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 5. Garbage should be collected and removed regularly. Garbage bins should be kept clean and covered. गार्बेज जो होता है हमें डेली बेसिस पर उसको क्लीन करना है और डेली का जो गार्बेज होता है वी नीड टू थ्रो इट आउटसाइड, कि रोज के रोज कचरे को हमें खाली कर देना है और हमें कचरे को इकट्ठा नहीं करना है, गार्बेज को इकट्ठा नहीं करना है। कोई भी गार्बेज हो वी नीड टू थ्रो ऑल द गार्बेज इन गार्बेज बिन्स। व्हाट इज गार्बेज बिन्स? कचरा पेटी को क्या बोलेंगे? गार्बेज बिन्स। कोई भी कचरा हो हम गार्बेज में ही डालेंगे। क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द 5 points about a clean house. Done? Now let's move to today's session. Clothes and fibers. Clothes protect us from heat, cold, rain and insects bites. Clothes जो होते हैं हमें कौन कौन सी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं? एक तो हीट से, दूसरा कोल्ड से, तीसरा रेन से, चौथा इंसेक्ट से। कौन सी इतनी 4 चीजों से हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। हीट से कैसे? when we are going outside, at that time sun is there, right? तो सन की जो रेज होती है, हॉट रेज होती है, वो हमारे हैंड्स पे पड़ेगी और हमारे क्लोथ्स पे पड़ेगी। उसमें डिफरेंस है। अगर हमारे क्लोथ्स पे पड़ेगी तो हमारे बॉडी स्किन को डायरेक्ट टच करेगी नहीं और हमें गर्मी लगेगी नहीं। खास करके समर सीजन में कि वो कॉटन क्लोथ्स हम जो पहनते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है ना, जो गर्मी होती है ना, वो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस वजह से हम कैसा फील करते हैं? थोड़ा ठंडा, इतनी गर्मी लगती नहीं है। हीट मतलब समर सीजन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, इवन सनलाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारे ऊपर एक लेयर आ जाता है स्किन के ऊपर, उस वजह से हमें सनलाइट ज्यादा लगती नहीं है। क्लियर किड्स? नाउ कोल्ड। क्लोथ हमें कोल्ड से कैसे बचाता है? कोल्ड से मतलब ठंडी से ऐसे बचाता है कि जैसे कि हम स्वेटर पहनते हैं, राइट? तो स्वेटर भी एक क्लोथ ही हुआ, राइट? तो उससे क्या होती है? हमें ठंडी नहीं लगती मतलब हमारी प्रोटेक्शन हुई विंटर सीजन में, मतलब कोल्ड सीजन में। क्लियर? तो क्लोथ हमारा इतनी हेल्प करता है। फिर रेनी सीजन में whenever raining is outside, what you are going to wear? You are going to wear a raincoat, right? तो रेनकोट का वो क्या है? They just help us to, हमें क्या हेल्प करता है? रेन कोट पहनते हैं तो हमें तो रेन से बचाता है, हमें वेट होने से भी बचाता है। तो वो भी एक क्लोथ का काम हुआ कि वो हमें इतनी प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? नाउ लास्ट वन की इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट से वो कैसे हमारी हेल्प करता है? तो कि कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो हमारी स्किन है तो उसके ऊपर ही बाइट करेगा, बट एक क्लोथ का लेयर आ जाएगा तो उसके ऊपर बाइट कर लेगा, तो हमें कुछ भी हार्म होगी नहीं। हार्म मतलब हमें कुछ भी होगा
नहीं कुछ भी लगता है वो होगा नहीं, तो उससे भी हम सेफ हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें से हमें क्लोथ प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन सी चीजों से? एक तो हॉट क्लाइमेट से, कोल्ड क्लाइमेट से, रेन से और इंसेक्ट्स बाइट से। क्लियर? क्लोथ्स एंड फाइबर्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं ना वो फाइबर्स से बने होते हैं। ये फाइबर्स क्या है? नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और मैन मेड फाइबर्स होते हैं। जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा उससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, बट वो जो कपड़ा होता है वो कहाँ से बनता है? आपको पता है वो कहाँ से बनता है? वो जो कॉटन या सिल्क जैसे होते हैं ना उसमें से वो थ्रेड बनते हैं। थ्रेड मतलब डोरों को एक मशीन होती है थ्रेड को कोई भी मटेरियल में कन्वर्ट करने की, फिर उसमें मटेरियल कन्वर्ट होता है और मटेरियल में से हमारा कोई भी कपड़ा रेडी होता है, राइट? Fibers are very thin hair-like materials that are spun into threads. कि फाइबर्स एक बहुत ही पतला हेयर जैसा होता है, उनमें से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना पतला हेयर। हमारा हेयर कैसे होते हैं? उतना पतला रेशा जैसा होता है। उनमें से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन में डाल के थ्रेड में। किसमें? थ्रेड मतलब डोर। फाइबर्स मतलब हमें कोई भी मटेरियल मिलता है वो नेचुरली मिलता है। कॉटन या उसमें क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ही पतले पतले, उनमें से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? थ्रेड। थ्रेड मतलब डोर। क्लियर? थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक फैब्रिक और क्लॉथ। वो थ्रेड की पूरी सब कुछ रेडी हो जाती है ना, फिर उन थ्रेड को एक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेड को एक मटेरियल में थ्रेड करते हैं। थ्रेड बनाने की एक मशीन होती है, उसमें क्रिस क्रॉस ऐसे मशीन होती है जिससे थ्रेड को इकट्ठा करके एक पूरी की पूरी क्लॉथ या फैब्रिक मतलब एक मटेरियल बनता है। किड्स, आपको लाइव एग्जांपल देखना है ना, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप मम्मा की कोई भी कॉटन की चुन्नी होती है ना, दुपट्टा या तो फिर कॉटन का हैंडकरचिफ, उसको आप लाइट होगी ना, हमारे घर की लाइट, उसके सामने रखोगे और उसमें देखोगे आपको क्लियरली थ्रेड की जो होती है ना कॉम्बिनेशन, ऐसे 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 ऐसे, वो आपको क्लियरली दिखेगी कि एक थ्रेड में से एक मटेरियल कैसे बनता है। आपको नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट ग्रेड में आपको आएगा कि फैब्रिक कैसे बनता है। आपको देखना है तो आप मम्मा का दुपट्टा देख सकोगे कि थ्रेड में से ही फैब्रिक बनता है। क्लियर? Pieces of fabric are stitched together to make the clothes we wear. फिर वो जो क्लॉथ रेडी होता है ना, उसमें से हम कोई भी चीज को स्टिच कर सकते हैं। जैसे कि we can whatever worn by us that is made from fiber, कि वो किस में से बना है? तो एक फाइबर में से क्लॉथ प्रिपेयर होता है, क्लॉथ में से हमारे कोई भी स्टिच्ड क्लॉथ होते हैं वो बनते हैं। क्लियर? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक रोब्स एंड मैट्स। फाइबर्स जो होते हैं ना, वो जो टोटली रॉ होता है फाइबर, उसको हम किसके लिए भी यूज कर सकते हैं? रोब्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और मैट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रोब्स मतलब डोर, रस्सी बोलते हैं ना, वो जो फाइबर होता है वो रस्सी बनाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। और मैट्स, घर में जो मैट्स होती है ना, उसको भी बनाने के लिए उसको यूजफुल हम कर सकते हैं। तो ये उसके यूजेस हुआ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगी यूजेस ऑफ फाइबर्स, तो यू कैन राइट डाउन रोप्स एंड मैट्स। क्लियर? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? 2 टाइप्स के फाइबर्स, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। जो दीदी ने अभी मीनिंग्स में बोले ना, नेचुरल फाइबर मतलब जो कोई भी whatever things we get from nature, that thing is called natural। कि हमें नेचुरली कोई भी चीज मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर।
और दूसरी चीज मतलब कि हमें मैन मेड जो हमने बनाई है उसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स का दूसरा नाम है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है? मैन मेड फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर? 2 types, right? Which are they? Number 1, natural. Number 2, man-made or synthetic. Once again, how many types of fibers are there? 2. Number 1, man-made, natural, or number 2, man-made or synthetic. और सिंथेटिक मत दीदी क्यों बोल रही? क्योंकि मैन-मेड को सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। क्लियर? Now kids, natural fibers. Natural fibers क्या है? Fibers that are obtained from either plants or animals are called natural fibers. Natural fibers मतलब जो कोई भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। प्लांट्स को पता है ना आपको कि कॉटन है तो वो प्लांट है, प्लांट में से हमें क्या मिलता है? कॉटन। फिर कॉटन का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड के बाद एक फैब्रिक बनता है, फैब्रिक के बाद हमें क्या मिलता है? एक क्लॉथ रेडी कर सकते हैं, राइट? तो ये इस प्रोसेस से ये सब कुछ होता है। तो आपको क्लियर आया कि जो कुछ भी नेचुरली होता है, नेचर में हमें मिलता है, उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। फिर दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स से हमें कैसे मिलता है? ये जो शीप होता है ना, शीप, उसके ऊपर वूल जैसा होता है, कि उसके ऊपर निकाल के उनमें से हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उस मटेरियल का वूल बनाते हैं। और वूल में से क्या बनते हैं? स्वेटर्स, सॉक्स, ये सारी की सारी चीजें हम बना सकते हैं वूल में से। तो वो भी एक नेचुरल हुआ। फिर सिल्क वॉर्म्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक इमेज शेयर की थी सिल्क वॉर्म की, राइट? उनमें से आप लोगों ने देखा कि उसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है ना, रिंकल्ड स्किन, वो निकाल देता है। वो इकट्ठा होती है ना बहुत सारे, उनमें से हम लोग सिल्क फिर एक प्रोसेस करके उनमें से सिल्क थ्रेड्स बनते हैं। सिल्क थ्रेड में से सिल्क मटेरियल में से सिल्क क्लोथ्स बनते हैं, राइट? तो ये सब कुछ एक नेचुरल मटेरियल हुआ। किड्स, एग्जांपल्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क। जैसे दीदी ने बोला, एग्जांपल्स है कॉटन, वूल एंड सिल्क। कॉटन किस में से मिलता है? प्लांट्स में से। वूल कहाँ से मिलता है? शिप में से, मतलब एनिमल्स में। फिर सिल्क, वो किस में से मिला? एनिमल में से। क्लियर? तो ये हुआ नेचुरल फाइबर। Now kids, in next session I'll explain about fibers from plants and fibers from animals. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बोलूंगी कि फाइबर्स प्लांट्स में से कैसे मिलते हैं और फाइबर्स एनिमल्स में से कैसे मिलते हैं। तो वो आपको मैं डेप्थ में नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। किड्स, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो सेशन 1 और सेशन 2 क्या रिकॉल किया हमने, और ये सेशन में हम लोगों ने क्या किया? क्लोथ्स एंड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, ये दो चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। तो आज ये पढ़ा वो फटाफट से रिकॉल वंस अगेन कर लेते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. Fibers are very thin hair-like materials that are spun into threads. Threads are woven together to make fabric or cloth. Pieces of fabric are stitched together to make the clothes we wear. Fibers are also used to make ropes and materials. Fibers are of two types, natural fibers and man-made fibers. Man-made का दूसरा नाम क्या है? सिंथेटिक, राइट? मैन-मेड जो हमें नेचुरली मिलता है फ्रॉम प्लांट्स या फ्रॉम एनिमल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल। और बाकी का जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? मैन-मेड। किड्स, आई एम सेंडिंग अ PDF with this section. Try to solve all the blanks by your own self. Okay? Till next session. Bye.